इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। और जो अभी हम नॉमेनक्लेचर इस समय जो एक्सेप्ट होता है वो किसी वर्ड के आगे जो चीज़ आप ऐड करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और किसी वर्ड के पीछे जो आप, अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, पहले तो ये सीख लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर ब्रांच चेन का मतलब है यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ लगा हुआ हो सकता है, ऊपर नीचे छोटी छोटी। अब क्वेश्चन आएगा मैडम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, 1 2 3 दोनों साइड से नंबरिंग करो, 2 पे आएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। Hello students, welcome to the class. As you know, our first chapter of organic chemistry, some basic principles of techniques is going on. We have read many of its topics and we have started it from the very basic of the carbon, like the valency of the carbon, hybridization of the carbon, covalent bonds and all. And last we ended it at the nomenclature of the organic compounds. Last class में हमने nomenclature of the organic compounds complete कर लिया था. आज हम next topic pursue कर रहे हैं. Our today's topic is isomerism. Now the question arises, ma'am, what is isomerism? First, I'll introduce you with the simplest definition of isomerism. Compounds which have the same molecular formula but different properties. The different properties are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. This is the simplest definition. ऐसे कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट उनकी प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, द प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. तो क्वेश्चन अराइजेज, मैम ऐसा कैसे हो सकता है, फार्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. वो मैं भी आपको बताऊंगी कि व्हाई इज दिस सो. अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आइसोमर्स क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है. तो द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स, and this property, this phenomena is known as isomerism, right. ये अभी हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आएगा कि why their properties are different. Now the types of isomerism. Isomerism is broadly divided into two types. First one is structural isomerism. मैं शॉर्ट में आइसोमेरिज्म को आइसो लिख रही हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. राइट. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज further divided into 5 types. First one, chain isomerism. Second one, position isomerism. Third one, functional group isomerism. Fourth one, metamerism. And fifth one, ring chain isomerism. Like this, stereoisomerism is also divided into two types. First one is geometrical isomerism and second one is optical isomerism, right. So this is the simplest flow chart for the isomerism. There are two types of isomerism, structural isomerism or stereoisomerism. Structural isomerism is divided into 5 types. First we will study structural isomerism. What does it mean by structural isomerism? Simple isomerisms now you have understood. Now structural isomerism, molecular formula MF, short में मैं लिख रही हूँ, molecular formula will be same but structure of the compound
will be different. ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे, और क्योंकि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन्स the compounds have the same molecular formula. Molecular formula is the same but structures are different, that's why they have different properties. Now first type of structural isomerism is chain isomerism. Chain isomerism यहाँ आप example से समझेंगे. Molecular formula is same but carbon chain length is different. ठीक है, एक चीज तो आपकी हर बार कॉमन रहेगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है. आइसोमेरिज्म कहीं भी आ जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, लेकिन डिफरेंस किसमें है, कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट है. कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट है इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से देखो. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया है C4H10 दैट इज ब्यूटेन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, राइट. अब मैं ब्यूटेन को किस तरह से लिख सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट इट, CH3, this is N-butane, right. Second formula, a minute, isobutane, that is isobutane, or IUPAC name of it will be 1 2 3, that is 2-methyl propane, right. Ab C, number of carbon here is 4, number of carbon here is 4, number of hydrogen is same 10, number of hydrogen is same, molecular formula is same, both compounds have C4H10 formula, but here it is a straight chain which is called N-butane, here it is a branch chain. IUPAC name is 2-methyl propane, butane means 4 carbon chain, propane means 3 carbon chain, the chain length of carbon is changed, so these are the isomers and this phenomena is known as isomerism. And because it has the straight chain structure and it has the branch chain structure, so they will have the different properties, and if they will have the different properties, the isomerism is shown. ठीक है, यहाँ पर कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, यहाँ पर कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इसलिए प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. टेक वन मोर एग्जांपल, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ C5H12 that is pentane. First one I can write it like this, that is N-pentane. Second one I can write isopentane, and what will be its IUPAC name, 2-methyl butane, and third formula we can write it as this is known as neopentane, common name is neopentane, or if I do the numbering I will write the IUPAC name is 2,2-dimethyl propane, right. Now see, in this structure, in this structure, and in this structure, in all three structures number of carbon is 5, C5, and in all three structures number of hydrogen is same 12. ठीक है, but the carbon chain length, here carbon chain length is 5 carbon, here in carbon chain length 4 carbon, and here in this 3 carbon. ठीक है, तो यहाँ पर 5 कार्बन चेन है, वहाँ 4 कार्बन चेन है, और यहाँ 3 कार्बन चेन है, तो तीनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट कार्बन चेन लेंथ विल बी डिफरेंट, कार्बन की चेन लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये जो मैंने आइसो और नियो लिखा हुआ है ये इनके कॉमन नेम है, बाकी IUPAC नेम से आपको एग्जैक्टली कार्बन चेन क्या हो जाएगी पता लग जाएगी. ठीक है,
So first part of the structural isomerism is chain isomerism. Now second part is the position isomerism. Position isomerism, फर्स्ट चीज जो मैंने बोला सेम रहेगी हर बार, वो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो डिफरेंस किस में आएगा, बट देयर विल बी डिफरेंस in the position of double bond, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, ये तो जहां भी हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं वहां आएगा ही आएगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी. किसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन डबल बॉन्ड की भी चेंज हो सकती है, पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की भी चेंज हो सकती है, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की भी चेंज हो सकती है, और पोजीशन ब्रांचिंग या साइड चेन की भी चेंज हो सकती है. ठीक है, नाउ वी विल टेक द एग्जांपल, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा. कंसीडर इट. Do this numbering, 1 2 4, but 1 ene, and for this 1 2 4, but 2 ene. I am not explaining the nomenclature of these compounds because we have read it in the last class. तो वहां से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे बार बार पूरा सा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. यहाँ पर देखो दोनों का फॉर्मूला क्या है, C4H8 है, एल्कीन है. ठीक है, बट यहाँ जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो कौन से नंबर पे है, 1 पोजीशन पे है. नेम इज 1 ब्यूट 1 इन. ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे, ब्यूट 2 इन. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नॉर्मली देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 इज सेम, बट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज बीइंग चेंज्ड. यहाँ पर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. ठीक है, यही मैंने आपसे कहा था कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचिंग की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. नॉमेनक्लेचर कीजिए, 1 2 3, इट इज 1 chloropropan, right, and this will be 1 2 3 2 chloropropan. अब देखो फॉर्मूला इज कार्बन का नंबर 3, हाइड्रोजन 3 2 and 2 7 and 1 chlor. ठीक है, C3H7Cl. This is the common formula of both two compounds, but in this chloro group is attached at the first carbon, in this chloro group is attached at the second carbon. Name is 1 chloropropane and 2 chloropropane. किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप क्लोरो की पोजीशन चेंज हो रही है, और क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पोजीशनल आइसोमेरिज्म. पोजीशनल आइसोमेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, बट और कार्बन चेन लेंथ भी सेम है जो हमने पहले पढ़ा. ठीक है, सेम कार्बन चेन लेंथ, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचिंग. ठीक है, इनकी पोजीशन में जहाँ डिफरेंस आएगा, पोजीशन में डिफरेंस आया तो स्ट्रक्चर अलग हुआ, और स्ट्रक्चर क्योंकि डिफरेंट हो गया तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई. तो अभी आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो पढ़ लिए टाइप्स, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म. Now we'll move forward to the third one, that is functional group isomerism. ठीक है, functional group isomerism क्या है, फर्स्ट थिंग जो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट, बट डिफरेंस किस में आएगा, नाम से पता चल रहा है, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, डिफरेंस किस में आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा. और ऑब्वियस सी बात है, लास्ट क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप में क्योंकि डिफरेंस आएगा तो वहां पर प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं. देखो इसका फर्स्ट टाइप जो है वो हम लेते हैं एल्कोहल एंड ईथर.
राइट। इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 NO, CH3 CH2OH. This is the formula of alcohol, that is ethanol. CH3O CH3. This is methoxy methane ether. ठीक है. Now count the number of carbon, that is C2, number of hydrogen H6 and that is O. दोनों के फॉर्मूला में कार्बन का नंबर 2, दोनों के फॉर्मूला में हाइड्रोजन का नंबर 6 एंड ऑक्सीजन का नंबर क्या है 1, बट वन इज अल्कोहल एंड अनदर वन इज ईथर. और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन. CnH2nO. This is aldehyde and ketone. I'll write example CH3 CH2 CHO. क्या नाम है? एल्डिहाइड. तो नाम क्या हुआ? प्रोपेनेल. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन. नाम क्या हुआ? प्रोपेन 2-ओन. ठीक है. अब काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ कार्बन इज 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1. ठीक है. तो सेम कार्बन का नंबर 3, हाइड्रोजन का नंबर 6, जस्ट अ मिनट, एंड 2. फाइव और 6, राइट. ठीक है. तो नंबर ऑफ कार्बन इज 3, हाइड्रोजन इज 6 एंड ऑक्सीजन इज 1. ठीक है. तो ये अपना क्या हो गया यहाँ से C3H6O. दोनों का फॉर्मूला सेम है बट द फंक्शनल ग्रुप हेयर इज एल्डिहाइड एंड फंक्शनल ग्रुप हेयर इज कीटोन. ठीक है. एल्डिहाइड के लिए एल आता है, कीटोन के लिए ओन आता है. तो ऑब्वियस सी बात है जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो वहां पर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है. इसी का हम थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CnH2nO2, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. CH3 CH2 COOH and CH3 COO CH3. This one is propanoic acid and this one is methyl ethanoate. ठीक है. Count the number of carbon, that is 3. Count the number of hydrogen, 3, 2 and 1, 6. And count the number of oxygen, 2. Both have the same molecular formula C3H6O2, but here the functional group is carboxylic acid and here the functional group is ester. Because the functional group is different, so properties will be different. And last example in this category is 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. See. This is 1 degree amine, this is 2 degree amine and this is 3 degree amine. Count the number of carbon in all three structures. Number of carbon is C3, number of hydrogen is 3 and 2 5 and 2 7 and 2 9, C3H9 and N. This is the number. ठीक है. All three structure have number of carbon 3, number of hydrogen 9 and number of nitrogen is 1. ठीक है. But this one is 1 degree amine, this one is 2 degree amine and this one is 3 degree amine and all three have the different property. ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट. और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी. एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. 4 कैटेगरीज जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाते हैं वो आपको याद रखना है. अल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स. ठीक है. Now the fourth one is metamerism. Okay.
तो पहला हमने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नाउ इट इज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या है, सी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, तो फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इन एल्काइल चेन on either side of the functional group, right, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, फंक्शनल ग्रुप इज सेम, बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जो अल्काइल चेन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स में मिलता है, इट इज फाउंड इन कीटोन, ईथर्स, एस्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। किस में मिलेगा, कीटोन, दिस वन, किस में मिलेगा, ईथर्स, किस में मिलेगा, एस्टर्स, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कहां पर मिल रहे हैं, जो चेन के बीच में आते हैं, जो मिड ऑफ द चेन आते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल पे आते हैं उनमें ये वाला आइसोमेरिज्म आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ आई विल टेक द एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग अबाउट द ईथर, see both have 4 carbons, count the number of carbon, both have same number of hydrogen, both have same number of oxygen, so molecular formula is same, both are ether, ठीक है। तो functional group is same but chain is different on either side of the functional group। यहाँ ऑक्सीजन के इस साइड पर देखो, जो आपका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, यहाँ पर 1 कार्बन और राइट हैंड साइड पर 3 कार्बन, यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ साइड पर क्या हो गए, 2-2 कार्बन हो गए। नॉमेनक्लेचर से आपको और समझ में आएगा, इट्स नेम इज मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, एंड इट्स नेम इज इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब देखो नाम यहाँ पर क्या हो गया, मिथॉक्सी प्रोपेन, और यहाँ पर नाम क्या हो गया, इथॉक्सी इथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, फंक्शनल ग्रुप इज सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो कार्बन का चेन है उसका नंबर देखो डिफर कर रहा है। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर दोनों साइड पर क्या है, 2-2 नंबर हैं कार्बन के, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, सी दिस, try to identify the functional group, what will be its name, pentane 2-one, and this will be pentane 3-one। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। सेकंड नंबर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी कीटोन और यहाँ भी कीटोन, तो ऑक्सीजन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया, कीटोन हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप इज सेम। डिफरेंस इन द कार्बन चेन लेंथ, यहाँ पर कीटोन के एक साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 कार्बन, राइट हैंड साइड पर 3 कार्बन, और यहाँ एट बोथ साइड यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2-2 कार्बन। तो नेम इज पेंटेन 2-on and name is pentane 3-on because the position of the ketone is changed, तो स्ट्रक्चर क्या है, चेंज है, और क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज है तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो मेटामेरिज्म में जो याद रखने वाली बात ये है, वो ये है कि मेटामेरिज्म इज शोन बाय कीटोन, एस्टर्स एंड ईथर्स, ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप विच आर फाउंड इन बिटवीन ऑफ द कार्बन चेन, जो टर्मिनल पे मिलेंगे ना, जो एट द एंड ऑफ कार्बन चेन मिलेंगे, वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अगेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फिर डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस इन ओपन एंड क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। I'll show you the example. See, propene,
CH3 CH double bond CH2. This is propene, or you can say it prop 1. Okay, this is also propane, but this is cyclopropane. Okay, I can write it as this. Both have the formula C3H6. Count the number of carbon, count the number of hydrogen. ठीक है, number of carbon and number of hydrogen you can count. Both have the same number of carbon and same number of hydrogen, but this is straight chain structure and this is closed chain structure. This is a ring structure. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर क्या है, क्लोज चेन है, रिंग है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो, किस बारे में हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर पहली बात. ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैं एक बार इसको ब्रीफ करती हूँ, फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आएंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब molecular formula will be same but structures of the compounds will be different, and because the structural will be different तो वहाँ पर जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंस किस में आएगा, कार्बन चेन में. ठीक है, दैट नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म में डिफरेंस किस में आएगा, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड पोजीशन ऑफ द ब्रांचिंग. ठीक है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम रहेगा. नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस किस में आएगा, फंक्शनल ग्रुप में आएगा. ठीक है, फोर्थ आपने कौन सा पढ़ा, मेटामेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंस किस में आएगा, on in the alkyl chain on either side of the functional group. And last one is ring chain isomerism. ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में किस में डिफरेंस आएगा, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक रिंग में चेंज आ जाएगा. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंस हो जाएंगी. ठीक है, अब बात आई कि मैम ये तो हमारी बात हुई है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात तो हमने नहीं की है. ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में नहीं है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस होगा वो क्लास 12th में इंट्रोड्यूस होगा आपको, और जहाँ पर एल्कोहल आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर. ठीक है, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है. देखो, केमिस्ट्री में एक डिफरेंस ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री. स्टीरियो केमिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड्स. ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज में इसे समझें तो स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है कोई भी चीज स्पेस में जिस तरह से रखी हुई है, स्पेस में जिस तरह से अरेंज है, वो उसका क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट है. ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट, आप अगर अभी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्लासरूम है, आप यहाँ देखिए आप लोग जिस तरीके से बैठे हुए हैं, अगर मैं आप, तो ये एक सर्टेन स्पेशल अरेंजमेंट है. अगर मैं आपकी पोजीशंस चेंज कर दूं, किसी को उठा के दूसरी जगह बैठा दूं, उसको उठा के तीसरी जगह बैठा दूं, इनकी पोजीशंस चेंज कर दूं, तो ये हमारा क्या हुआ, स्पेशल अरेंजमेंट हुआ. और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहाँ आप डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट की स्टडी करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म यही होता है. ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल में जहाँ ज्योमेट्री में चेंज आएगा, ज्योमेट्री क्या होता है 9th-10th क्लास तक आप सब पढ़ चुके हैं, जहाँ ज्योमेट्री में चेंज आएगा. और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहाँ हम देखने से रिलेटेड, ऑप्टिक्स वर्ड का यूज होता है व्हेन यू आर यूजिंग आइज. ठीक है, और व्हेन यू आर स्टडिंग रिलेटेड टू आइज. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने से रिलेटेड जहाँ चेंज होता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ब्रीफ किया है. अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी समझ में आया है तो इट्स ओके. स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम 12th की क्लास में आपको कंटिन्यू करवा देंगे, वहीं पर आपको पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है उसका भी. बेसिकली आपके कोर्स में है क्या, सबसे पहले आपको पढ़ना है आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए, और ये जो 5 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए ये विद एग्जांपल्स. ठीक है, तो इस क्लास में हमने आज की क्लास में आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ परस्यू करेंगे फर्दर, एंड वील कंटिन्यू दैट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. So students, if you find this video important for your learning, please do like, share and subscribe our channel. Thank you.